हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल। आप ये मत सोचिएगा कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सरसाइज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की बाकी की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। तो without any delay, let's start our class. So exercise 3.7, first question is there. The age of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30. Find the age of Ani and Biju. So it is very easy question. So let's solve. Understand properly concept question first. So what we have to find? We have to find the age of Ani and Biju. तो जो भी फाइंड करनी है हम उसी को लेट कर लेते हैं, ये चीज तो हम अच्छे से जानते हैं। So let the age of, always let present age, let the present age of Ani equal to X year. Second, let the present age of Biju equal to Y year. This thing is okay. Next, now first condition is there, the age of two friends Ani and Biju differ 3 years. So first condition is there, first condition Ani and Biju एज डिफर, यानी कि दोनों की एज में डिफरेंस कितना है, 3 ईयर का। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इजी। सेकेंड, Ani's father Dharm is twice as old Ani. तो एज ऑफ धर्म Ani से कितना, ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम, सो 2x हो गई। क्लियर। नाउ Ani and Biju is twice as old as his sister and Biju is twice as old as sister, यानी कि जो Biju है वो सिस्टर से कितना है, 2 गुना है, 2 टाइम है, तो सिस्टर कितनी होगी, हाफ होगी ना। ठीक है, तो एज ऑफ कैथी, अगर Biju डबल है तो कैथी हाफ हो जाएगी, तो एज ऑफ कैथी इज y/2। किसकी हाफ हो जाएगी, Biju की। यू कैन राइट ईयर आल्सो। क्लियर। नाउ आवर सेकेंड कंडीशन इज कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। तो देखिए, एज ऑफ धर्म 2x है, एज ऑफ कैथी y/2 है, तो इनमें से धर्म ग्रेटर होगा, तो और इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर, तो कैथी और धर्म दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 ईयर है। ये इक्वेशन बन गया सेकेंड। क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड वी विल गेट आवर आंसर। ओके, so firstly we will solve it properly, then we will make it equation second. So by 1 take 2 LCM. So 2 1 2s are 2, 2 2s are 4x minus y equal to 30. Just cross multiply, तो 4x minus y equal to 3 2s are 60. This is equation number 2. Okay, it is not showing, so we will solve here, no problem. 4x minus y
equal to 60. That is equation number 2. Now we will solve both. So here x minus y equal to 3, here 4x minus y equal to 60. So coefficient y are equal and sign also equal. So we will subtract both and we get our solutions. So subtracting first and second, we get subtracting first and second, we get the first x minus y equal to 3, second 4x minus y equal to 60. When we will subtract, sign will change. So plus minus y cancel out, minus 4 or plus x, so minus 3x, or minus 60 plus 3, so equal to minus 57. So minus minus also cancel, x equal to 57 upon 3. Now divided, 3 1s are 3, 3 9s are 27. So x equal to 19. So what is the x? The present age of Ani. So you know age for. Now we have to find the value of y. Now we get age of Ani, and when we will substitute the value of x in any equation, first and second, we will get the value of y and age of Bizu. And that's two things we have to find. Okay, so here space is there, so I'm solving here. After that, from first, so x minus y equal to 3, value of x 19 minus y equal to 3, minus y equal to 3 minus 19, so minus y equal to minus 16, minus minus cancel, y equal to 16. Clear? So we got our answer. So you can write what you have to write. Age of Ani 19 years, and age of Bizu y 16 years. Clear? Okay, next question. Question number second. One say, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. Then other replies, if you give me, then I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital from the, this is the something name of the book is written. So it is very easy. Two friends are there. ठीक है, दो फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं. पहला फ्रेंड बोलता दूसरे से, मुझे 100 रुपीज दे दो. तो मैं क्या हो जाऊंगा, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब तुमसे मैं 2 गुना ज्यादा धनी हो जाऊंगा अगर तुम मुझे 100 रुपीज देते हो. देन अदर रिप्लाई, तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है, इफ यू गिव मी 10 रुपीज, मतलब अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं 6 टाइम, मतलब तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा. टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर, तो उनकी हमें अमाउंट फाइंड करना है. ओके, तो हम दोनों की अमाउंट लेट कर लेते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो लेट the amount have to first friend. फर्स्ट पर्सन लिख लेते हैं, 2 लोग हैं ना. अमाउंट है फर्स्ट पर्सन यानी कि पहले व्यक्ति के पास हम लेट कर लेते हैं रुपीज x है, एंड लेट द अमाउंट हैव सेकेंड पर्सन. 2 फ्रेंड हैं तो फर्स्ट सेकेंड पर्सन ले लेते हैं रुपीज y. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त है.
फर्स्ट कंडीशन देखो, हम यहां इक्वल का साइन लगाते हैं, ये फर्स्ट फ्रेंड है उसका अमाउंट है, ये सेकेंड फ्रेंड है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड ने सेकेंड फ्रेंड से क्या बोला, गिव मी 100 रुपीज। किसको? फर्स्ट फ्रेंड को कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज दे दो, ये बोल रहा है इससे कि 100 दे दो। तो अगर इसने इसको 100 दिए तो इसके पास 100 तो माइनस हो गए होंगे ना, 100 कम हो गए होंगे, तो यहां पे 100 माइनस कर दो, ठीक। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। तो ये कह रहा है कि 100 रुपीज अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा रिच हो जाऊंगा। तो अगर हम इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना, जबकि हमने तो यहाँ पे इक्वल का साइन कर रखा है। तो इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसमें करेंगे, लेस वाले में करेंगे, लेस अमाउंट में करेंगे। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई एंड गेट अ प्रॉपर इक्वेशन। So x plus 100 equal to 2y minus 200. So x minus 2y equal to, take 100 here, so minus 200 minus 100. So what you will get? X minus 2y equal to minus 300. Question number first. Clear? Now second condition. Now write y first then x. y first क्यों? क्योंकि अब सेकेंड फ्रेंड की बारी है मांगने की। अब वो बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज दोगे, किससे? x से बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे 10 रुपीज दिए तो इसके पास 10 रुपीज कम हो गए। क्लियर? इसने इसको 10 रुपीज दिए तो 10 रुपीज कम हुए, तो कितने गुना रिच हो जाएगा ये? 6 टाइम्स रिच हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 6 कर देंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ इक्वल लगा रखा है तो ये इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नाउ सॉल्व इट। सो y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। नेक्स्ट स्टेप, सो टेक दिस बोथ फ्रॉम देयर। So 6x minus y minus 60 and minus 10 equal to 0. So 6x minus y equal to 70. This is equation number second. Now see, here x minus 2y minus 300. Here 6x minus y equal to 70. So if we will want to do equal coefficient of x, so we will multiply here by 6. अगर हमको y के कोफिशिएंट इक्वल करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है। और हम ये कौन सा मेथड कर रहे हैं? ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो multiplying by 2 in equation second and subtracting from first। तो पहले फर्स्ट लिख लेते हैं क्योंकि हमको इसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 300। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 12x minus 2y और 7 2 is 14। Now sign will be changed. Clear? So change the sign, minus plus minus. So plus minus cancel out, minus 12 plus 1, so minus 11, 4 0 4 3 1 4 minus 44 440. This is x also here. So now x equal to minus 440 upon minus 11. Just minus minus cancel out and 11 4 is 44. So x equal to 40. We got x equal to 40. So let the amount have the first person. So first person having rupees 40. Clear? Now
space is here. So take any one from first. You take from first. X, we got x 40 minus 2y equal to minus 300. So minus 2y equal to minus 300 or minus 40. So minus 2y equal to minus 340. So minus minus cancel out, y equal to 340 upon 2. So y equal to 70. When you divide, you get 70. Sorry, 170, not 70. Clear? So now it is easy na. तो first friend have rupees 40 और another friend have rupees 170. Clear? Next. Now question third. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. So we have to find the distance. So it is very easy to find the distance. So let's start. So firstly we will let, actually after that speed change हो रही है, तो पहले हम क्या लेट करेंगे, ओरिजिनल स्पीड लेट कर लेंगे. टाइम भी चेंज हो रहा है तो हम ओरिजिनल टाइम लेट कर लेंगे, तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी आ जाएगी. ठीक है. सो लेट द, अब प्रॉपर राइट करते हैं ताकि स्पेस की प्रॉब्लम ना आए. लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर. क्लियर? एंड लेट द टाइम टेकन बाई ट्रेन. अब लिख लेते हैं टाइम कितना लिया, y आवर्स. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ सो this is the speed, we have let the speed and let the time. So distance, you know distance equal to speed into time. It means distance will be x into y, means xy. Clear? Kilometer, because kilometer per hour is there, so kilometer. So these things you understand properly. हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों वैल्यू रख दी, एक्स वाई किलोमीटर. अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, अभी आप देखिएगा तो समझ में आएंगी चीजें. नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर. नाउ फर्स्ट कंडीशन में अब आ जाते हैं. फर्स्ट कंडीशन, एंड व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, न्यू स्पीड. फर्स्ट कंडीशन में न्यू स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर फास्टर, यानी कि x में 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गया तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. क्लियर? एंड टाइम टेकन 2 आवर्स लेस. सो न्यू टाइम 2 आवर लेस, तो y था तो y में से 2 हो गया. सिंपल सा है भाई, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी तो समय तो कम लगेगा ना जाने में. ठीक है, अगर आप जो है तो 40 आवर पर किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं. अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो कितने लगेंगे भाई, बढ़ गया, स्पीड डबल हो गई तो टाइम हाफ हो जाएगा. क्लियर? न्यू टाइम न्यू स्पीड.
And now distance equal to y, same things, speed into time. Now distance will be not change. भाई डिस्टेंस अगर हमें यहाँ से कानपुर जाना है फिर कानपुर से वापस आना तो डिस्टेंस नहीं चेंज होगी ना, सेम डिस्टेंस होगी. And in place of distance what we will write? This is our distance x y. Speed, now new speed x plus 10 and new time y minus 2. Okay, now just multiply and get the first equation xy, then xy minus 2x plus 10y or minus 20. So xy cancel, take out here, so 2x, okay, it is not showing, so here 2x minus 10y 20. This is equation number first. Now second condition. What question is saying in second condition? A train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more. अगर स्पीड धीमे हो गई तो 3 hours ज्यादा लग रहे हैं उसको. So another न्यू स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या थी x, अब उसमें कितना स्पीड कम हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, सो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. अनदर न्यू टाइम, सो 3 hours मोर, तो y था टाइम ओरिजिनल, उसमें से 3 hours और बढ़ जाएंगे, 3 hours बढ़ जाएंगे तो y प्लस 3 hours हो जाएगा. Now again same things, distance equal to speed into time. एक्चुअली ये ओरिजिनली में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी को हम घुमा फिरा के यूज करते रहते हैं. डिस्टेंस आर सेम x y, speed now x minus 10 and time now y plus 3. Now just multiply and get the proper equation. So xy, it is already there, x into y, x plus 3 minus 10y or 3 tens are 30. Clear. So xy cancel, what is the left? 3x minus 10y equal to 30. This is equation number second. Okay, so now I am erasing these things. We got 2 equations and we will solve these 2 equations to find the distance. So first 2x minus 10y equal to 20, 3x minus 10y, it is 10y, and both are having the equal coefficient and same sign. Clear. But we will change the sign, so we have to subtract. So subtracting first and second, we get, so first equation is there, 2x minus 10y equal to, it is actually minus 20, so correct it. It is minus 20, it is not 20, so minus 20, and second is there 3x minus 10y equal to 30. So just we are subtracting, so we have to change the sign. So now this plus 10y minus 10y cancel out, so minus 3 or plus 2, so minus x and minus 30 minus 20, so it will be minus 50. So minus minus cancel out, x equal to 50. So now we got speed of train 50 km per hour. Clear. Now next, so take any equation from first and second. So I am taking from first, to multiply by 50 in place of x, 50 minus 10y equal to minus 20.
So 5 2s are 10, it means 100 minus 10y equal to minus 20. Now I'm erasing this side. So next step, so take 100 right side, so minus 10y equal to minus 20 or minus 100. So minus 10y equal to minus 120, minus minus cancel, y equal to 120 upon 100. So y equal to 120 upon 10, y equal to 12. So now speed of train, this, and the time taken by, time is 12 hours and speed is 50. Now we have to find the distance. We have to find the distance. So you know distance equal to speed into time. So speed into time, and you know the speed 50 kilometer per hour we got, and time 12. So 12 5 is 60, so 600 kilometer. This is our distance. Okay, now question number 4. The student of class are made to stand rows. If 3 students are extra in a row, there would be one row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 row more. Find the number of students in the class. So very easy. So we have to find the number of students, total number of students in the class. So firstly we will let the number of students in each row x. Then we will let the number of rows. How many number of row is there? Y. Now you understand what is the question. Question is saying कि किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको हमें रो में स्टैंड करना है. तो कुछ रोज हैं, 10 हो 15 हो, वो तो फाइंड करेंगे तब पता चलेगा. और प्रत्येक रो में कुछ स्टूडेंट को खड़ा किया गया है, 10 को किया गया है 50 ईच रो. तो वही चीज लेट कर लेंगे. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो x, लेट द नंबर ऑफ रोज y. तो अब इस बात को थोड़ा समझिए एग्जाम्पल से. सपोज करें हम यहाँ पे 4 रोज हैं. नंबर ऑफ रोज कितनी रो हैं? 4. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, अगर हम कह दें कि ईच रो में 5 स्टूडेंट है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इन सब जगह 5 स्टूडेंट है. तो स्टूडेंट 5 है इन ईच रो, इन ईच. क्लियर? तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज और इन ईच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 स्टूडेंट हो गए. तो सेम यहां भी यही चीज होगी. टोटल स्टूडेंट अगर हमें फाइंड करना है, टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट क्या होगा? नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट इन द रो एंड नंबर ऑफ रो. क्लियर? इट मीन्स हमको ये मिला XY. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आएंगे हम फर्स्ट कंडीशन में. फर्स्ट कंडीशन, सो क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल सी, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, so now each number of student in each row, number of students in each row कितने हो रहे हैं? 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि x+3 हो जाएगा. देन फिर क्या है, जब स्टूडेंट बढ़ रहे हैं ईच रो में, तो क्या होंगी? रो कम होंगी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ रो, कितनी रो बनेंगी?
सो 1 रो विल बी लेस, तो यानी कि y माइनस 1। क्लियर? यानी कि हर रो से निकाल के हम 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, मतलब सारी रोज में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा, तो एक रो तो वैसे भी कम हो जाएगी ना, उसके लिए स्टूडेंट ही नहीं बचेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 3 ज्यादा हो गए, तो इसमें एक रो कम हो गई। ये फर्स्ट कंडीशन। अब टोटल स्टूडेंट इसमें निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एंड इनटू नंबर ऑफ रो, एंड यू ऑलरेडी नो टोटल स्टूडेंट, टोटल तो वही रहेंगे, बस हम इस रो से उस रो में रो कम कर रहे हैं, कभी स्टूडेंट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन है तो उतने ही स्टूडेंट क्लास में, तो वो वही रहेगा एक्स वाई। इसका मल्टीप्लाई करो आपस में, तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y और -3, एक्स वाई कैंसिल, सबको इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या बचेगा? -3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब अगला स्टेप यहां देखते हैं, सेकेंड कंडीशन। नाउ वी विल सी सेकेंड कंडीशन। Second condition. What is the second condition? If 3 students are less in a row, the number of student in each row, number of students in each row, 3 student less। ठीक है, कितने थे? x थे, उसमें से 3 लेस हो गए। अब नंबर ऑफ रो, कितनी रो बची? नंबर ऑफ रो, सो रो विल बी, अगर कम हो रहे हैं तो रो बढ़ जाएंगी, 2 रो आर मोर, सो y प्लस 2। क्लियर? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यहां से नहीं दिख रहा आपको, तो आई एम राइटिंग हियर इन ईच रो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और दैट इज y प्लस 2। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा? रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल आप जानते हैं एक्स वाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6। क्लियर? एक्स वाई कैंसिल, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y, और ये नहीं आपको दिख रहा, तो ये -6 है, ये -6 है। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे की चीज निकालते हैं। बस ये याद रखना कि हमने रो किसको लेट किया था, और वो नाउ सी x माइनस 3y इक्वल टू -3, 2x माइनस 3y, तो -3y माइनस 3y सेम है, तो हम एलिमिनेशन लगा देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट क्या है हमको? x माइनस 3y इक्वल टू -3, सेकेंड क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -2x प्लस x माइनस x, -6 माइनस 3 -9, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड कोई भी ले लो, फ्रॉम फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू -3, तो x की प्लेस में 9 माइनस 3y इक्वल टू -3, 9 उधर जाएगा, तो -3y इक्वल टू -3 माइनस 9, -12 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 12/3, तो 3 4 ज़ा 12, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3। नाउ व्हाट वी विल डू?
वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ई रो मल्टीप्लाई बाई द स्टूडेंट इन ईच रो, यही तो फाइंड करना था ना, एक्स वाई फाइंड करना है। सो टोटल स्टूडेंट फाइंड करने हमको, क्या था एक्स वाई था भाई, एक्स इंटू वाई, एक्स हमारा क्या मिला 9, वाई क्या मिला 4, तो क्या मिल जाएगा 36 स्टूडेंट्स, यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3, एंगल B इक्वल टू 2A प्लस B, फाइंड द 3 एंगल्स, यानी कि तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी है, हम इनमें से किसी एक को लेट कर लेंगे, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल 3B और एंगल B इक्वल टू 2A प्लस B, और नहीं भी लेट करना तो भी ऐसे ही जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हम, देखिए कितना इजी है। एंगल C इक्वल टू 3, एंगल B इक्वल टू 2, एंगल A प्लस एंगल B, ये है कुल मिला के। तो ये तो तीनों चीज़ें इक्वल हैं, सबसे पहले ये दिमाग में लाइए। तो इनके इक्वल हम कुछ भी कर सकते हैं, के कर लिया हमने इनके इक्वल में। तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालने आसानी रहेगी, तो एंगल C इक्वल टू कर सकते हैं के इक्वल, तो एंगल C इक्वल टू के हो गया, ठीक। अब इसको करेंगे 3 एंगल B इक्वल टू कर लेंगे के इक्वल, क्योंकि ये आपस में सारे इक्वल हैं। हमने इसको लेट कर लिया, लेट कर लो यहाँ से, ये क्वेश्चन 5 है, लेट इक्वल टू के कर लो, P कर लो, Q कर लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ एंगल B की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा k/3, क्लियर। अब इसी तरह हम यहाँ से C की निकाल आए, B की यहाँ से A की निकाल लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो 2 एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू के, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा 2। अब यहाँ पे एंगल B की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k/3 इक्वल टू k/2, तो एंगल A इक्वल टू ये उधर जाएगा k/2 माइनस k/3। तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें k/6, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वैल्यू हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये k/6 है, ठीक है। और B की वैल्यू क्या है k/3 है, C की वैल्यू क्या है k है, इक्वल टू 180। एलसीएम लो 6 ही आएगा, तो 6 1 जा 6k, 3 2 जा 6 2k, और बाई 1 तो 6k इक्वल टू 180 डिग्री। 6 2 8 1 9, तो ये 9k इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 6, ये डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 2 जा 80 18, तो k इक्वल टू, अब बचा क्या 20 मल्टीप्लाई बाई 6, तो k की वैल्यू आ गई 120, क्लियर। k की वैल्यू आ गई 120। अब बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो चलो यहाँ स्पेस है, यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। तो एंगल C क्या मिल गया हमको, यही तो k था, तो एंगल C मिल गया 120। एंगल B कितना है k/3, यानी कि 120/3, तो एंगल B मिल जाएगा हमें 3 4 जा 12 40 डिग्री, C ये हो गया। और एंगल A
ए क्या था k/6, तो k कितना है 120/6, तो एंगल ए मिल गया 6 2 जा 12। अगर आपको चेक करना है आपके आंसर करेक्ट हैं तो कुछ नहीं करना भाई, क्या है यहाँ पे 120 + 40 160 + 20 180, तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं हम, बाकी आप x y z कुछ भी मानते रहे उससे भी आ जाएगा। मैथ में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करिए, आंसर लेकिन एक ही होता है, आंसर नेवर विल चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x - y = 5 and 3x - y = 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y axis. ठीक है, तो बहुत इजी है। Determine the coordinate of the vertices of the triangular formed by the line and y axis. So it is very easy. देखिए इसको तो मैं यहाँ ड्रा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ में बेटर बनेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि करना कैसे है और आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है 5x - y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 3x - y = 3। अब बात समझिएगा इसकी ध्यान से, इसको हम पहले फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं। हाफ से ज़्यादा तो मैं सॉल्व करवा दूँ, केवल ग्राफ ड्रा करने में यहाँ प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्लियर नहीं आएगा ग्राफ, ठीक है, मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट से हमने लिया 5x - y = 5, y उधर ले जाओ, या फिर y मत ले जाओ, y यहीं रहने दो, y उधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ, इक्वल टू y, यानी कि ये y = बन गया 5x - 5। इसको थर्ड बनाओ। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। आपने 9th में बहुत सारे पढ़े होंगे, खूब सारे किए होंगे, तो एटलीस्ट हम 3 वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ करेंगे कैसे, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू हम ढूंढ के रखेंगे। ढूंढना क्या है, कोई भी नंबर रखेंगे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, +- 0 कुछ भी रख सकते हैं आप। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे x = 1 रख रहे हैं, पुटिंग x = 1 इन सेकेंड, तो x = 1 रख दिया, यहाँ x y बना देंगे कॉलम में, x 1 रखा तो यहाँ पहले x की जगह 1 रख दो। अब जब x की जगह 1 रखेंगे तो y क्या मिल रहा हमें 5 × 1 - 5, यानी कि ये दोनों कैंसिल, y = 0। x 1 रखा तो y 0 मिल गया, ठीक, क्लियर। अब आगे कंडीशन में हम क्या करेंगे, x की फिर कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे, अब -1 रख लो, ठीक है, तो x -1 रख लिया तो y की वैल्यू 5 × -1 - 5, यानी कि -10 आ गई। तो अब x की वैल्यू -1 रखी तो ये -10 मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 रख दो, चलो हम 0 भी रख देते हैं, तो y हो गया 5 × 0 - 5, तो y की वैल्यू -5, 0 रख दिया तो -5, ये टेबल मिल गई। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। वैल्यू हमें अपनी तरफ से रखनी है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत लिखिएगा कि ग्राफ के बाहर आपके डायमेंशन जाने लगे, मेजर ग्राफ के बाहर जाने लगे, ठीक है। छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो फिर आपकी स्केल ही बाहर जा रही है पेज के, तो क्या फ़ायदा ऐसी वैल्यू का, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग अब फ्रॉम सेकेंड ले लेते हैं हम, इसको भी y उधर ले जाओ तो 3x - 3 = y, ठीक है। क्या करेंगे, रखें x की वैल्यू, x = 1 रख दें तो y मिल जाएगा 0, क्योंकि 3 - 3। एक टेबल और बना देते हैं हम x y की, तो x 1 रखा, y 0 मिल गया। अब x 2 रख देते हैं तो 3 × 2 = 6 - 3 = y, तो y कितना मिल गया 3, x 2 रख दिया तो y 3 मिल गया, ठीक। अब x 0 रख देते हैं तो y क्या मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये -3 मिलेगा। तो अगर x 0 रखा तो y -3 मिलेगा। अब इन्हीं दो टेबल की इंपॉर्टेंस है अब आपके इस क्वेश्चन में, बाकी तो सोल्यूशन का कोई मतलब नहीं, लेकिन सोल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको,
ठीक, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके वर्टिसेस कैसे लिखेंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वही ग्राफ में हम ऐसे, ऑलरेडी आपको ग्राफ में दिखेंगी लाइनें ये, तो यही रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट नहीं बनेगा, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा मेजरमेंट में डिस्टर्बेंस आएगी। ये x होता है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। तो जो x और y ये प्लस होते हैं दोनों, और x डैश y डैश ये दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, तो अब इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन को, तो x 1 है, y 0 है, तो यहीं पे आ जाएगा। दूसरा -1, -10 है, तो -1 x में यहाँ आ गया, और -10 y में नीचे चला जाएगा, तो यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक, फिर 0, 5 x में 0, यानी कि 0 दोनों का यही होता है, और -5 y में यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। ठीक, तो देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा बनने लगा ना, क्योंकि ये मेजरमेंट इसकी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, x = 1 यहीं से जाएगा, y = 0 यही हो गया। ठीक, 2y 2 रखे थे तो कितना मिला था, इसमें हम ये थोड़ा गलत लिख गया, y नहीं होगा, हम यहाँ पे 2 रखे थे, तो 3 2 जा 6, 3 मिला था। तो x में 2 है, y में 3 प्लस का 3, तो ये 3 आ गया यहाँ पे, यानी कि आएगा। क्लियर, अब 0, x में 0, y में -3, तो -3 यहाँ आ गया। ठीक, तो ये भी थोड़ा क्लियर नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे इस तरह से जाएगा। अब ये जब बनेगा तो यहाँ ये एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, तो इसी के हमें वर्टिसेस बताने होंगे। ठीक, इसके वर्टिसेस बताएंगे कैसे, देखो यहाँ से 1 2 3 -3, और यहाँ से 2 2, -3, पहले x वाला रखा जाएगा। इस तरह से इसके ट्राइंगल के ABC के वर्टिसेस बता दीजिएगा। ABC लिख लीजिए, कोई और नाम देना, कोई और नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये बेटर बनेगा, आपकी ग्राफ में प्लॉट होगा, आप बना लेंगे, क्योंकि आपने 9th क्लास में बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इन लीनियर इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे इनको एलिमिनेशन से। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं, px + qy = p - q, qx - py = p + q। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। सो वेरी इजी, हम इनके कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, दोनों में अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक दूसरे के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे। x के करना है तो x के कर देते हैं एक दूसरे में, y करना है तो y के। तो चलो हम y के कर देते हैं, x की निकालते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाई, y के करना तो p के कर दो, बाई p, एंड इन इक्वेशन सेकेंड बाई q। अब मल्टीप्लाई करो, पहले वाले में p का करना है तो p² x + pqy = p और p - q। ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड में। फिर इसमें करो तो ये आ जाएगा, q का करना इसमें तो q² x - pqy = q और p + q। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऐड, और साथ में ऐड भी कर रहे हैं हम, तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये आ जाएगा p² x + q² x, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। इधर आ जाएगा p और p - q + q और p + q। इन दोनों में x कॉमन है तो p² + q² अंदर बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करो, p² - pq + pq और +q², तो pq कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ आ जाएगा p² + q² x
और यहाँ क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल टू मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो x की वैल्यू मिल गई 1। अब ये x की वैल्यू 1 इनमें से किसी में रख सकते हैं, तो यही हमें फाइंड करना था x y की वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड किसी से ले लो, फ्रॉम सेकेंड ले लो। इनमें नहीं रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशंस में। तो q मल्टीप्लाई 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा q उधर चला जाएगा, या फिर यहीं रहने दो, मत ले जाओ। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, q दोनों साइड हैं और इक्वल साइन है। तो माइनस पी वाई इक्वल टू पी, तो y इक्वल टू पी अपान माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1। यही आपके आंसर हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। सॉरी ये माइनस है ना, तो माइनस भी रहेगा। क्लियर। तो ये था आपका 7 का फर्स्ट नंबर। नाउ सेकेंड ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू c, दिस इज फर्स्ट। एंड bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c, दिस इज सेकेंड। इस पे भी सेम वही कंडीशन है, इनके अपोजिट कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम लैंग्वेज लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाई a एंड इन इक्वेशन सेकेंड बाई b एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो करो भाई, पहले में a का करो, तो a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी, दोनों साइड होगा a का ओवरऑल। दूसरे में a का और b का, तो b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू b प्लस बी सी, b और इसमें c में b का, तो बी सी हो गया। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना था, लैंग्वेज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो माइनस माइनस माइनस, सबके प्लस साइन है तो माइनस हो गए। अब ए बी, सॉरी ये गलत कैंसिल हो गया, ये तो नहीं होगा, माइनस जरूर होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आएगा, ए सी पूरे में माइनस साइन हो जाएगा भाई, तो माइनस बी और माइनस बी सी। क्लियर। तो क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इनमें से c कॉमन है, चाहो तो ले लो c, a माइनस बी और माइनस बी। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, अभी इसको ऐसे ही भी रख दो, शायद अभी काम में आ जाइए, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। या फिर ये वाली रख दो आप, बात वही है, c a माइनस बी और माइनस बी करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो। इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, c a माइनस बी, लेकिन यूज़ हम इसी को करेंगे। अपान ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी करके होता है ना, और माइनस बी इसमें भी कर दो, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आंसर वांसर कहीं मैच ना हो रहे हो तो ये सब कर सकते हैं आप, c अपान a प्लस बी माइनस बी अपान, ये तो वही हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे मैच कर सकते हो। लेकिन हम यूज इसी करेंगे। अब कोई भी इक्वेशन ले लो y की वैल्यू निकालने के लिए, फ्रॉम फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो a x की वैल्यू हम इसी को यूज करेंगे, ए सी माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, उधर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा बी वाई इक्वल टू सी, और ये टोटल माइनस का चला जाएगा ए सी माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू आ गई, हम इनको इरेज कर सकते हैं। कुछ नहीं है, मेथड वही है, सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इनमें। सो बी वाई इक्वल टू, अब ए का मल्टीप्लाई कर लो तो सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी और प्लस ए बी सी, साइन भी चेंज हो जाएंगे ना, अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाई वन करो, एलसीएम ले लो, तो बी वाई इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, फिर ये माइनस ऑलरेडी है ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। बी वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ओवरऑल बी कॉमन है, तो इस ये भी है इधर, तो बी सब जगह से कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा माइनस बी सी, दो बी हैं एक बचेगा, यहाँ सिंगल ही है तो एक बचेगा, यहाँ सिंगल है तो एक भी नहीं बचेगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं y इक्वल टू ए माइनस बी सी प्लस ए सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप करना चाहो तो इसकी तरह कर लो। अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, इसके आगे हम आगे लिख देंगे ये y की वैल्यू, इसको इरेज कर देते हैं, ये ऑलरेडी डन है। तो y की वैल्यू जो आएगी वो a माइनस बी सी प्लस ए सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इनमें दोनों में c कॉमन लेके a माइनस बी बना के ऐसा ही यहाँ कट जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा। मतलब नहीं समझे, इसको कर दो a माइनस सी कॉमन ले लो तो a माइनस बी हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग कर दो तो इसकी जैसे आ जाएगा, वरना ये भी करेक्ट है। ओके, नाउ थर्ड नंबर, क्वेश्चन 7 थर्ड। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट बना देते हैं। सेकेंड ऑलरेडी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी वही चीज़, उसी सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग, इसको अगर आप करना चाहो सब्स्टिट्यूशन से भी बड़ा आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ए एंड इक्वेशन सेकेंड बाई बी एंड सब्ट्रैक्टिंग। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में बी से करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकेंड में ए से, तभी ये y के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखेंगे, एडिंग, क्योंकि दोनों के साइन ऑलरेडी चेंज हैं। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ करते हैं। तो पहले में b से करना है तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0, इसमें 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर इसमें किससे करना है, a से, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऐड करना है तो ऐड में साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो गया। ये आया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में x कॉमन है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सेम ही होता है, तो x की वैल्यू हमको मिल गई a। अब किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट से ले लेते हैं, छोटा है तो फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू a रख दो,
बी इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ए वाई इक्वल टू ए बी, ए से ए कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए मिल गया, वाई इक्वल टू बी मिल गया। यही हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 4 नंबर, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, बाकी सब मस्त है। ए प्लस बी वाई, एक्चुअली अगर आप ये देखेंगे, नहीं रहने दो, सीधा ही रहने दो, फर्स्ट कर दो उसको, वो नहीं बनेगा। हम सोच रहे थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन है हमारा, इसको बनाना पड़ेगा ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो ये ए प्लस बी एक्स आ जाएगा, और ए प्लस बी का वाई में कर दो, प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड कर दो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है हमारा a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस, तो ये कैंसिल। ये a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, x कॉमन ले लो, तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए और ए कैंसिल। यहाँ बचा हमारा माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2ab। क्लियर? तो यहाँ माइनस 2bx, दोनों में इनमें 2b कॉमन है, वो भी माइनस का, तो इसमें b बचा और इसमें प्लस a बचा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई a प्लस बी या b प्लस a, जो भी कहो, दोनों सेम है। अब इनमें से किसी एक को ले लेते, तो जाहिर सी बात है हम फर्स्ट को ही लेंगे, ओ फर्स्ट को नहीं सेकंड को लेंगे, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो फ्रॉम सेकंड से सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी एक्स, और x की वैल्यू ऑलरेडी a प्लस बी है, तो पुट कर देते हैं, और प्लस यहाँ भी a प्लस बी है, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है, यहाँ दोनों में a प्लस बी कॉमन है, ठीक है, लेकिन तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लेकिन पड़ेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल दोनों साइड, तो a प्लस बी वाई इक्वल टू 2ab, तो y इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्लियर है, माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी और x की वैल्यू a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7 5th नंबर, ये भी बहुत इजी है, थोड़ा सा डिजिट्स बड़ी हैं तो हम इसको छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस 2 10, तो ये मिल जाएगा टोटली हमें। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 8 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 7 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा,
माइनस वाला बड़ा है ना, तो 7 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा 2 और 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, -2 26। सेम इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा तो सेम इसमें भी आएगा y, ये x है, और ये जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट साइन के सब्ट्रैक्ट हो गए, सेम साइन के ऐड हो जाएंगे तो 8, ठीक है, 7 6 माइनस के साथ। अब इसमें से 226 कॉमन ले लेंगे, माइनस के साथ ले लेंगे, ठीक है, तो ये x प्लस वाई और ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है, ये 3 टाइम जाएगा। अब इसको बना देते हैं थर्ड, देखो कितना छोटा आ गया और इजी भी हो जाएगा सॉल्व करना। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को तो भी बड़ा इजी आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज कर दो, ये जुड़ जाएगा, इसका भी साइन चेंज होगा, ये भी जुड़ जाएगा, और ये दोनों के साइन डिफरेंट हो जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट आएगा -530x, अब जब इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10 7 5 12 1 3 3 1 4 and 1 5, तो ये भी 530y आ जाएगा, और इनको ऐड कर ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 और 4 0, ठीक है, और इसके बाद क्या बचेगा 10 - 7 3, ये भी 530 आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा, ठीक। 530 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई माइनस के साथ करेंगे तो -1, ये आ गया 4। अब ये बिल्कुल इजी हो गए, हम इजीली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो इसका साइन हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा, और इसका साइन होगा माइनस का, तो ये प्लस का ही रहेगा और ये माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये ठीक है। और ये बड़ा था तो इसको साइन हो जाएगा किसका, प्लस का, तो ये 1 रहेगा, ये करेक्ट है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी कहीं नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखो सीधा ऐड कर दो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2, 2 2 4, तो x इक्वल टू 2। देखो कितना इजी आ गया, बड़ा करते डायरेक्ट करते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा था। अब x 2 किसी में रख दो, ले लेते हैं फ्रॉम थर्ड या फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड वी गेट, तो थर्ड में क्या है, x की जगह 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 - 2, तो y की वैल्यू मिल गई 1 और x की वैल्यू 2। नेक्स्ट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड ये क्वेश्चंस आपने 9th क्लास में बहुत सारे सॉल्व किए होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो ABCD है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस ये फिगर है मैंने बना दिया है। और ये चीज़ आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जानते होंगे कि जो अपोजिट एंगल का सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है। बस इसी एक कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल D, अपोजिट एंगल यही है 180, तो एंगल B है 3y - 5 और D है -7x + 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, सॉरी 5 कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, ठीक है। तो ये 7x माइनस का है तो इसको प्लस का कर देंगे, और जो माइनस वो प्लस का था उसको माइनस, यानी कि माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा -180। क्लियर, ये फर्स्ट बन गया। दूसरा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल A है हमारे पास 4y + 20 - 4x इक्वल टू 180।
तो इसमें भी वही काम करिए, -4x प्लस 4y और 20 उधर जाएगा तो 180 माइनस 20 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, साथ में 4 भी ले लेते हैं, माइनस का 4। तो यहाँ कितना बच रहा है 160। अब ये इसको डिवाइड कर देगा तो 4 4 जा 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे नहीं शो हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। So -4 take common, x minus y equal to what is left here 120, sorry 160, 4 4 जा 16, तो x minus y equal to -40। माइनस क्यों आया, यहाँ माइनस था, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया सेकेंड। तो ये 7x माइनस 3y माइनस 120 और ये x माइनस वाई माइनस 40। तो ये दोनों, इन दोनों में कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो हम y के इक्वल कर देते, तो इसमें 3y है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि साइन भी सेम है। तो लैंग्वेज लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट को पहले लिख दो क्योंकि इसी सब्ट्रैक्ट करना है। 7x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 180। अब सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4 3 जा 12। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे डेफिनेटली। ठीक है, बस अब सॉल्व हो गया। अब इधर बाकी चीज़ें हम राइट कर देते हैं। तो ये कैंसिल आउट, 7 माइनस 3, 4x इक्वल टू क्या बचेगा वहां पे, माइनस का 60 बचेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 4, तो 15 4 जा, तो x इक्वल टू माइनस 15। माइनस 15 बचा, लेकिन हम एंगल निगेटिव नहीं लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। फिलहाल अभी माइनस 15 ही रहने दो क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट माइनस 15, सेकेंड ले लो क्योंकि फर्स्ट तो हमने इरेज कर दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, x की जगह माइनस 15 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40 उधर जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40 और प्लस 15, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 25। तो y इक्वल टू मिला हमें y इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25। क्लियर, तो x इक्वल टू 15 डिग्री, y इक्वल टू 25। अब एंगल फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब एंगल फाइंड कर लेते हैं। हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई तो सारे एंगल निकल आएंगे। तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। एंगल ए इक्वल टू क्या है 4y प्लस 20, तो 4 मल्टीप्लाई 25 प्लस 20, तो 25 4 से 100 प्लस 20, तो कितना आ गया 120 डिग्री एंगल ए आ गया। एंगल बी देखते हैं क्या है 3y माइनस 5, तो 3 मल्टीप्लाई 25 माइनस 5, 25 3 का 75 माइनस 5, तो क्या आ गया 70 डिग्री, दूसरा आ गया। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ध्यान रखना x की वैल्यू माइनस 15 है। अब एंगल C, तो माइनस 4x, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई क्या है माइनस 15 x की वैल्यू, तो 15 4 जा 60 डिग्री। और एंगल D माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 15 माइनस साथ में रखना प्लस 5, तो 15 7 जा 105 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 5, तो ये 110 हो जाएगा। ऐड करके देख लो भाई, 7 प्लस 60 130, 110 और 120 ऐड करो 0 3 2 5 1 6 1 2 3 360 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, मतलब ये सारे एंगल एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज आपकी 3.7 एंड नाउ चैप्टर 3 completed. So in next video chapter 4 quadratic equation,
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वो सब जगह काम आएगा आपके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।